নমস্কার, আমি সঞ্জীব মুখার্জি। আমি একজন বৈদিক অ্যাস্ট্রোলজার। আজকে আমি আপনাদের সামনে যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে মাঙ্গলিক দোষ বা মাঙ্গলিক যোগ, সেটা কিভাবে হয় সেই বিষয়ে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা। মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কে আমি আমার একটা ইউটিউব চ্যানেলও আছে যার নাম অ্যাস্ট্রোলজি ইন রিয়েল লাইফ। সেখানে আমি মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কে আমার বক্তব্য রেখেছি। সেখানে এই মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কে বলবো এবং এর রেমেডিস কী আছে, কীভাবে মাঙ্গলিক দোষ হয়। মাঙ্গলিক কথাটা মঙ্গলের সঙ্গেই যুক্ত। মঙ্গলের অবস্থান অনুযায়ী এই মাঙ্গলিক দোষ বা যোগ হয়। একে ভৌম দোষও বলা হয়। মঙ্গল যদি কারুর লগ্ন কুণ্ডলিতে বা মূল চার্টে বা ভেনাস চার্টে লগ্ন 4 নাম্বার, 7 নাম্বার, 8 নাম্বার বা 12 নাম্বার ঘরে থাকে তখন তাকে মাঙ্গলিক বলা হয়। তো এই মাঙ্গলিক হওয়ার ফলে কী হবে না, এটা তাদের বিবাহিত জীবনকে সমস্যা তৈরি হয়, বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। বাচ্চা জন্মের পরই তার মা বাবার একটা বিশাল চিন্তা থাকে যে আমার বাচ্চাটা তো মাঙ্গলিক নয়। তারা ছুটে যান কোনো পণ্ডিতের কাছে তার মতামত নিতে, কিন্তু দেখা যায় যে তার বাচ্চা মাঙ্গলিক কি মাঙ্গলিক নয়। তো এই তো মাঙ্গলিক তো মঙ্গলের অবস্থান অনুযায়ী হয়। আবার অনেকে আমি বলতে শুনেছি, কেউ কেউ বলেন যে ছেলেদের ক্ষেত্রে মাঙ্গলিক, মেয়েদের ক্ষেত্রে ভৌমদোষ। আবার অনেকে বলেন না না মেয়েদের ভৌম, ছেলেদের মাঙ্গলিক। এই ধরনের অনেক কথাগুলো চলে থাকে বাজারে, কিন্তু সেই কথাগুলো কিন্তু একটা গ্রহণযোগ্য নয়। মাঙ্গলিক দোষী হোক আর ভৌম দোষী হোক বা মঙ্গল যোগী হোক, যেটাই হোক না কেন সেটা মঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত। তো এই মাঙ্গলিক দোষ তো হয়ে গেল, এবারে ক্যান্সেলেশন তো হয়ে যাবে মাঙ্গলিক দোষটাকে। তা কী করে ক্যান্সেল হবে মাঙ্গলিক দোষ? প্রথম প্রশ্ন, যে যদি ছেলে এবং মেয়ে দুজনেই মাঙ্গলিক হয় তখন মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। যদি কারুর সর্বাষ্ট বর্গা চার্টে 27 গুণের বেশি পয়েন্ট মঙ্গলের থাকে, মঙ্গলের যদি ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট থাকে সর্বাষ্ট বর্গার চার্টে, মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। যদি ম্যারেজ ম্যাচিংয়ের সময়তে 27 গুণের বেশি ম্যারেজ ম্যাচিংয়ের গুণ ম্যাচ হয়, সেটাও মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। আবার যদি মঙ্গল উচ্চ বা নিচ রাশি বা নিজের রাশি, মূল ত্রিকোণ রাশি, বন্ধুর রাশিতে থাকে, এমনকি শত্রু রাশি থাকলেও মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। মঙ্গলের সাথে যদি কোনো শুভগ্রহ বা পাপগ্রহের সাথে থাকে, জুটি হয়, সেক্ষেত্রেও মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। আবার যদি মঙ্গল কোনো শুভগ্রহ বা পাপগ্রহ দৃষ্টিতে চলে আসে, সেটাও মাঙ্গলিক দোষ ক্যান্সেল হয়ে যায়। এই সমস্ত গেল মাঙ্গলিক দোষের ক্যান্সেলেশনের কথা। আমরা যখন কাজ করতে আসি, প্র্যাকটিক্যালে কাজ করি, তখন আমি তো অন্তত মাঙ্গলিক দোষের কতটা গুরুত্ব দিই না। তার কারণটা হচ্ছে আমি মাঙ্গলিক দোষটাকে বাদ দিয়ে আমি যেটার উপর গুরুত্ব দিই সেটা হচ্ছে লগ্ন চার্টে, লগ্ন চার্ট, গুণ চার্ট এবং নবাংশ চার্ট। এই 3টি চার্টে দেখতে হবে। সেখানে প্রথম ভাব লগ্ন, দ্বিতীয় ভাব, চতুর্থ ভাব, সপ্তম ভাব, অষ্টম ভাব এবং দ্বাদশ ভাব। প্রথম ঘরটা হচ্ছে আমাদের কি না শরীর, নিজের শরীর হচ্ছে প্রথম ভাব। দ্বিতীয় ভাবটা হচ্ছে বাক্য। দ্বিতীয় ভাবটা হচ্ছে আমাদের ধন ভাব। চতুর্থ ভাবটা হচ্ছে ঘরের শান্তি আছে না নেই দেখতে হবে। পঞ্চম ভাবটা হচ্ছে ছেলে সন্তানাদি কেমন আছে কিনা দেখতে হবে। সপ্তম ভাবটা হচ্ছে প্রতি
পত্নীর ভাব। অষ্টম ভাবটা হচ্ছে সেকেন্ড, সপ্তম থেকে সেকেন্ড হাউস, দ্বিতীয় ভাব, এটাও নির্ভর করছে। তো এইটা হচ্ছে, এইগুলো আমাকে দেখতে হবে লগ্ন কুণ্ডলী থেকে দেখতে হবে, মুন চার্ট থেকে দেখতে হবে, নবাংশ চার্ট থেকে দেখতে হবে। তো এই বাচ্চার চাইল্ড বার্থের ক্ষেত্রে আরও অনেক বিষয় আছে, সেটার জন্য আমি অন্য একদিন লাইফে আসবো, এসে চাইল্ড বার্থের বিষয়টা বলবো। তো এই মাঙ্গলিক কিনা, তো এইটা আমাকে প্রথমে দেখতে হলো। এরপরে দেখতে হবে হরস্কোপে 36 গুণের মধ্যে কত গুণ ম্যাচ করছে। সেই সাথে দেখতে হবে যে বিয়ের 6 মাসের মধ্যে যেন ছেলের বা মেয়ের মহাদশা পরিবর্তন না ঘটে, তাহলে পরে সেখানে মাঙ্গলিক সেটা প্রবলেম হবে। সেক্ষেত্রে মাঙ্গলিক কি মাঙ্গলিক নয় সেই বিষয়টা কিন্তু খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না বিয়ের ক্ষেত্রে। এবার যদি কোনো কারো যদি ছেলে বা মেয়ে যদি কেউ মাঙ্গলিক হয়, তখন কী করতে হবে? তখন আমাদেরকে সেই মাঙ্গলিক দোষের জন্য মঙ্গলবার দিন উপোস করতে হবে, কিংবা মঙ্গলের যে গ্রহরত্ন আছে লাল প্রবাল, সেটাকে ধারণ করতে হবে। তাহলে পরেই মাঙ্গলিক দোষ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। আবার বিয়ের আগে যদি শালগ্রাম শিলা নারায়ণের সাথে বিয়ে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রেও সেই মাঙ্গলিক দোষটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তা এইভাবে मांगलिक दोषटा कैंसिल हो जाए। এইটা হলো মাঙ্গলিক দোষের কথা। এবার আমার এই ভিডিওটা আমি বলেছি লাইভ করব দুটো ভাষাতে, বাংলা এবং হিন্দিতে। তো এতক্ষণ তাই বাংলায় বললাম, এবার আমি বলতে যাচ্ছি হিন্দিতে। मांगलिक जो योग है या तो मांगलिक जो दोष होता है ये कैसे बनते हैं? तो मांगलिक होता है ये तो मंगल का रिलेटेड योग होता है। तो मंगल का जो पोजीशन होता है, अवस्थान होता है, मंगल कहाँ बैठते हैं इसका ऊपर ये चीज़ डिपेंड हो जाता है। मंगल लगन में होता है, मंगल सेकेंड हाउस में, मंगल लगन में होता है, मंगल फोर्थ हाउस में होता है, मंगल 7th हाउस में होता है, 8th हाउस में होता है और 12th हाउस में होता है, तो मांगलिक दोष बन जाता है। तो साउथ इंडिया में तो बोलते हैं सेकेंड हाउस का भी मंगल को भी मांगलिक दोष माना जाता है। तो ये है मांगलिक दोष तो फॉर्मेशन हो गया। यही मांगलिक दोष भी कैंसिल भी हो जाता है। और मांगलिक दोष का क्या इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट ये होता है मैरिड लाइफ को स्पॉइल हो जाता है, मैरिड लाइफ के बहुत हैजल लेके आ जाता है जिसका मांगलिक दोष होता है। और ये मांगलिक दोष या तो मांगलिक जो ये कैंसिल कैसे होता है? मंगल का जो पोजीशन होता है कैसे बनता है? मंगल उच्च राशि, नीच राशि, मूल त्रिकोण साइन, एनिमी साइन, फ्रेंड साइन हो जाता है, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और हर अष्टवर्गा में मंगल का ज़्यादा पॉइंट मिल जाता है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। और क्या हो, कैसे मांगलिक दोष कैंसिल होता है? मैच मैचिंग का टाइम 27 से ज़्यादा गुण मैच भी हो जाता है, तभी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल कोई शुभ या तो कोई पाप ग्रह से दृष्ट होता है, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। मंगल कोई शुभ या पाप ग्रह का साथ बैठता है, सेम साइन में बैठ जाता है, तो मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो ये तो हुआ है मांगलिक दोष का कैंसिलेशन। तो किसी का कुंडली में मांगलिक दोष होता है, उसके लिए रेमेडीज़ क्या बनेगा? मंगलवार को आपको फास्ट रखना है भैया। तो मंगल के लिए अब मूंगा एक रतन होता है, रतन आपको धारण करना है। या तो आपको मंगल के लिए
मंगल के लिए आप मांगलिक दोष होता है, लड़का लड़की दोनों मांगलिक हो जाता है, वो भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। या तो मंगल के लिए शालिग्राम शिला शादी से पहले शालिग्राम शिला से शादी करना पड़ता है, तब भी मांगलिक दोष कैंसिल हो जाता है। तो प्रैक्टिकल जो काम करने का टाइम मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा था, ये लड़का लड़की मांगलिक है नहीं है ये ज़्यादा मैटर तो नहीं होता है। ऐसे भी मैंने देखा था जो मांगलिक लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं है, तब भी उनका मैरिज कंटिन्यूशन नहीं हो पा रहा है, उसका शादी तो टूटने वाला है। और बोलते हैं लड़का आके बोलते हैं भाई गुरुजी ये शादी तो मैं नहीं छोड़ना चाहता उस लड़की को। या तो लड़की मेरे को फ़ोन करके बोलती है जी गुरुजी मैं तो इस शादी को मैं नहीं कंटिन्यूशन करना चाहती हूँ, मैं इसको टूटना चाहती हूँ। ये तो प्रॉब्लम आता है। तो मांगलिक तो नहीं है। और क्या होता है न, मांगलिक छोड़ के भी हम लोग को देखना पड़ता है शादी के लिए। क्या देखना होता है न, शादी के लिए हम लोग को ये देखना होता है जो अष्टकूट जो मिलन होता है, अष्टकूट मिलन में से 36 गुना में से कितना गुना का मैच है। ज़्यादा पॉइंट मैचिंग है तो ठीक है, बहुत अच्छा है। उसको साथ साथ हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, लगन कुंडली चेक करना है, नवंश कुंडली चेक करना है और चंद्र कुंडली भी चेक करना है। और यहाँ पे लगन को चेक करना है, लगन लट, सेकेंड हाउस सेकेंड लट को चेक करना है। लगन क्या होता है, हम लोग खुद होता है, हम लोग का मेंटालिटी क्या है, हम लोग को हेल्थ क्या है, सारी चीज़ होता है लगन का ऊपर। और सेकेंड हाउस हम लोग को वाणी होता है, सप्तम से अष्टम भाव है सेकेंड हाउस, स्वामी स्त्री का आयु भाव भी सेकेंड हाउस होता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ हाउस, डोमेस्टिक पीस होता है, मातृभाव भी होता है, घर का शांति है नहीं है, शादी का बाद इनका घर का शांति रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज़ देखना पड़ता है इस फोर्थ हाउस से। आगे फिफ्थ हाउस देखना होता है, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉट का क्या स्थिति है। ये फिफ्थ हाउस में तो कोई पाप ग्रह का एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई पाप ग्रह तो फिफ्थ हाउस में बैठा तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। लेकिन फिफ्थ हाउस होता है हम लोग को विद्या होता है, बुद्धि होता है, हम लोग को संतान का भाव भी बनता है फिफ्थ हाउस। आगे सेवेंथ हाउस सेवन लॉट को भी देखना पड़ेगा। सेवेंथ हाउस क्या होता है, हम लोगों के लिए होता है सेवेंथ हाउस, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है। रिलेशन कैसे बनेगा नहीं बनेगा ये डिपेंड होता है सेकेंड हाउस सेवेंथ हाउस सेवेंथ लॉट का ऊपर। सप्तम घर और सप्तम घर का जो स्वामी ग्रह होता है इन दोनों का ऊपर होता है। आगे अष्टम घर का बात होता है। अष्टम भाव क्या होता है, सप्तम से द्वितीय भाव है ना अष्टम, ये भी स्वामी स्त्री का आयु भी होता है, ये भी चेक करना पड़ता है। ये सारी चीज़ चेक करना पड़ता है। और चाइल्ड बर्थ के लिए फिफ्थ हाउस में थोड़ा सा मैं बोल दिया, और भी डिटेल्स नहीं बताऊंगा जिस टाइम मैं आऊँगा लाइव सेशन पर, ओनली चाइल्ड बर्थ का ऊपर। तो अभी तो यहाँ तक मैंने बोल दिया, तो ये सारी चीज़ को हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने का बाद ही शादी का बात बनेगा। और इसमें तभी राइट प्रिडिक्शन हो पाता है, अदरवाइज प्रिडिक्शन तो गलत बन जाएगा, सारी चीज़ भी गलत हो जाएगा, शादी भी गलत हो जाएगा। तो ये आगे शादी का डिसीजन ले पाऊँगा, ये शादी होगा शादी नहीं होगा। और किसी का मंगल योग है तो इसमें कोई टेंशन का बात नहीं है। आप जाइए कोई नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए और कोई ज्योतिष से अच्छा ज्योतिष से आप कंसल्ट करिए और उन्होंने आपको सही आपको ओपिनियन देगा, आपको सही कंसल्टेंसी करेगा। इसके लिए मांगलिक दोष के लिए कोई टेंशन नहीं होगा आपको इतना परेशानी लेने के लिए भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो लाइफ सीजन में मैं हूँ अभी मंगल दोष और भौम दोष को लेकर, तो ये जो है ये तो मैं जो बोल रहा था
ये तो बहुत मिनिमम चीज़ ही मैंने बोला हूँ अभी, तो ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जिस धरती में बहुत लोग ऐसे भी मिलेगा आपका, अच्छा आपका मांगलिक दोष है, आप आ जाइए मेरे पास, मेरे को पैसे दो, मैं आपका मांगलिक दोष खत्म कर दूँगा, ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग को देखा, लेकिन ये लोग ये जो चीज़ें टोटली फेक है, इसका बातों का ऊपर कोई भी भरोसा नहीं होता है मेरा। तो आपको भी मैं बोल रहा हूँ, इस बात में आप मत जाइए, कोई कुछ बोलते हैं मत सुनिए, अच्छा आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, उसका कंसल्ट करिए। लेकिन क्या होता है, ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है ना, ये ब्रह्मलोक से आया हुआ है, और ब्रह्मलोक से धरती में भगवान ब्रह्मदेव का कृपा से आया है हम लोगों के पास। तो इसीलिए इसके लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलने के लिए भी सही नहीं होता है। लेकिन जो भगवान ने भेजा है धरती में, वही हम लोगों को मानना है, वही हम लोगों का नसीब है, वो हम लोगों का मानना ही पड़ेगा। तो ये जो लाइफ सीजन में हूँ अभी आप लोगों का सामने जो हूँ, ये टोटली फ्री लाइफ सीजन है। आपका किसी का मैरिज लेके कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कंसल्ट करिए। ये सीज़न के लिए टोटली कंसल्टेशन चार्जेस फ्री है, ये फ्री लाइफ सेशन है। आप अपना कुंडली मेरे को बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप मेरे को बताइए, और मैं आपको लिए अच्छा से अच्छा मैं ट्राई करूँगा आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करने के लिए। ये लाइव सेशन है, तो आपको ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग जो को कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप मेरे से पूछिए, और मैं भी आप लोगों को स्पेसिफिक क्वेश्चन का ऊपर स्पेसिफिक रिप्लाई भी करूँगा। यही मेरा रिक्वेस्ट है, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को करिए और मैं भी आपको रिप्लाई दूँगा। आप लोग कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या तो बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज में आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, और मैं सारे क्वेश्चन का आपको जवाब देने के लिए भी मैं यहाँ पर तैयार हूँ। এই লাইভ সিজনটা সম্পূর্ণ ফ্রি, এর জন্য কোনো আপনাদের কাউকে কোনো পয়সা পে করতে হবে না। আপনারা এই লাইভ সিজনে আমাকে প্রশ্ন করুন, আপনাদের মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কে যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে আমাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্ন করার সময় ডেট অফ বার্থ, টাইম অফ বার্থ আর প্লেস অফ বার্থ, এই তিনটে বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই তিনটে বিষয় আপনি আমার সাথে শেয়ার করুন। আপনি এই লাইভ সেশনে আমাকে প্রশ্ন করুন, কিন্তু প্রশ্নটা স্পেসিফিক কোশ্চেন করবেন। স্পেসিফিক কোশ্চেন করলে পরে আমি স্পেসিফিক আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবো। এখানে একটাই অনুরোধ আপনাদের কাছে যে আপনারা আমাকে স্পেসিফিক কোশ্চেন করুন। এই লাইভ সেশনের সময়টা খুবই কম। এই কম সময়ের মধ্যে আপনারা যার যা প্রশ্ন আছে মাঙ্গলিক দোষ সম্পর্কে, এই টপিকের সঙ্গে সম্পর্কিত, আপনারা আমাকে প্রশ্ন করুন, আমি আপনাদের প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দেব। आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछिए और मैं आपका सारे क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जो क्वेश्चन के साथ साथ आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भी आप पोस्ट करिए, और मैं आपका सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे दूँगा।
अभी तक मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया है किसी से। तब का किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए। और अभी किसी को लगता है नहीं है मांगलिक के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मैं नहीं पूछ पाऊँगा, तो कोई इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरा फेसबुक के ऊपर आप कमेंट करिए और मैं आपका क्वेश्चन का जवाब भी दे दूँगा। आप फेसबुक पेज के ऊपर कमेंट करिए और मैं आपको जवाब भी दे दूँगा। আপনাদের যদি কারোর মনে হয় যে এই লাইভ সেশনে আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারবেন না, আপনাদের কোনো কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন থেকে যায়, যে প্রশ্নগুলো এরকম সবার সামনে জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না, সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের এটাই অনুরোধ করব যে আপনারা আমার ফেসবুক পোস্টে আপনারা লিখুন কিংবা আমাকে পার্সোনাল ইনবক্সে আপনারা লিখুন, যেখানে আমি আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্নের জবাব দেব। আর আপনি আমার ফেসবুক পেজে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারও পেয়ে যাবেন। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারেও আপনি আমাকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন, আমার ফোন নাম্বারেও আপনি আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও আমি আপনার প্রত্যেকটা প্রশ্নেরই আমি জবাব দেব। আপনাদের কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো জবাব, কোনো প্রশ্ন এসে আমার কাছে পৌঁছালো না। তো আমি আপনাদের কাছে এটাই রিকোয়েস্ট করছি, অনুরোধ করছি যে আপনারা আপনাদের মতামত আপনি আমাকে সঙ্গে শেয়ার করুন এবং আমি আপনাদের যতটা পারা যায় সাহায্য করব। दर्शकों, अभी तक तो मेरे पास आप लोग एंड से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपका सारे क्वेश्चन का सही सही जवाब दे दूंगा। मैं एक एक दिन एक एक टॉपिक लेके आऊँगा आप लोगों के सामने। मेरा जो अगला टॉपिक बनेगा ये चाइल्ड बर्थ का रिलेटेड बनेगा। तो इस टॉपिक में आप सारे लोग आइए, मेरा वीडियो सुनिए, लाइव को सुनिए और आप अपना कमेंट मेरे साथ शेयर करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन का जवाब দিয়ে दूंगा। আমার এই পরের যে কোন লাইভে আসবো ফেসবুকে, সেখানে আমার বিষয় থাকবে চাইল্ড বার্থ, বাচ্চার জন্ম, সন্তানের জন্ম কিভাবে, কী কী কম্পোজিশন থাকলে পরে সন্তান হয়, কিভাবে পজিশনে থাকলে সন্তান হবে হয় না, বা সন্তান হতে ডিলে হয়, ডিলে চাইল্ড বার্থ, সেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আপনাদের কাছে একটু ধারণা দেওয়ার জন্য আমি চেষ্টা করব। আজকের মতো এই লাইভটা আমি এখানেই শেষ করছি। পরের লাইভে আবার আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে। धन्यवाद। अभी मैं ये लाइव को यहाँ पे ख़त्म कर अभी मैं इस लाइव को अभी यहाँ पे एंड करना चाहता हूँ।
तो अगला जो मेरा कार्यक्रम होगा वो मैं आप लोगों को पहले से इंटीमेशन भी कर दूंगा और लाइव पर भी आ भी जाऊंगा मैं। और अभी जो अगला जो मेरा लाइव फेसबुक लाइव का मेरा एपिसोड बनेगा, जो टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा तो वह है चाइल्ड बर्थ। आज के डेट पे तो चाइल्ड बर्थ का बहुत प्रॉब्लम है, बहुत का शादी होने के बाद भी बच्चा भी नहीं हो रहा है, डिले हो रहा है, इवन IVF भी मिस्ड हो रहा है। तो इस सारे चीज़ को लेकर मैं आऊँगा। तो अभी के लिए यहाँ तक है। तो आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपका सारे क्वेश्चन का जवाब दूँगा। धन्यवाद।